ناظرین، مکمل تلاش و جستجو تحقیق کے باوجود ملزم یا ملزمان کے بارے میں کہیں کوئی نشاندہی نہ ہو پائی تو تھانہ تلمبہ پولیس اسٹیشن ضلع خانیوال میں FIR نمبر 268/20 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ 302 کے تحت نامعلوم ملزم کے خلاف یہ تحریر قانون کی کتابوں میں درج کر دی گئی۔ قانون کے اہلکار آج بھی اس کیس کی تفتیش و تحقیق میں لگے ہیں۔ 23 ستمبر 2020 پولیس اسٹیشن تلمبہ ضلع خانیوال FIR نمبر 464/20 ای-ٹیگ 2726 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ 377B اور 511 کے تحت اس لمحے دکھائی جانے والی یہ پوری داستان مدعی اللہ رکھا والفقیر محمد ساکن فاضل شاہ نے بیان کی۔ کیا واقعہ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ میرے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جب ہم گئے وہ بھاگ چکا تھا، پھر ہم پولیس کے پاس گئے اور پولیس کے پاس جا کے انہوں نے کیس درج کیا۔ بچے نے آ کے آپ کو کیا چیز بتائی، کیا ہوا، کس طرح لے کے گیا، وہ ساری چیزیں آپ آڈینس کو بتائیے۔ یہ دیکھو، بچہ باہر نکلا تھا کھیلنے کے لیے، جب وہ دیکھا اس کے بعد طوطا تھا، طوطے کہنا بچہ تو طوطے کا دیتا ہوں تو جا ساتھ لے گیا۔ جب وہ اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر جا کے اوپر چبارے پہ لے گیا، وہاں جا کے اس کے ساتھ غلط کام ذاتی کرنے لگا۔ وہ شکر ہے کہ میرا بچہ بھی بچ گیا آرام سے، نہ پھر انہوں نے کہا گھر جا کے نہ بتائیو، تو یہ چپ کرے۔ پھر اس نے مجھے بتایا ابو یہ ایک واقعہ اس لڑکے نے کیا، فہیم نے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں پہلے جانے لگا، ہم لڑنے کے لیے گئے، پھر انہوں نے کہا نہیں کہ تم تھانے میں جاؤ۔ یہ محلہ فاضل شاہ ہے، یعنی 3-4 گلیوں کی حدود ہی میں یہ پورا واقعہ منظر پر ابھرا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ بچہ اپنے گھر کی جانب جاتے جاتے یوں ہی مصروف ہو گیا، جو اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے، اور دور بیٹھا ہوا یہ شخص اسی انداز سے اس جانب دیکھ رہا تھا۔ اور پھر یہ اس بچے کے قریب آ کر کہنے لگا، کیا تم خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے طوطے دیکھو گے؟ میرے پاس میرے گھر پر بہت سارے ہیں، آؤ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو میں تمہیں دکھاؤں۔ اور یہ معصوم بچہ اسی طرح اس کے ساتھ چل دیا۔ اسی انداز سے فہیم نامی شخص اس بچے کو اپنے ہمراہ لے چلا۔ اس گلی کو عبور کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنے کے بعد ہر جانب کا جائزہ لیتے ہوئے اس علی حسن نامی بچے کو اپنے ٹھکانے کی جانب لے آیا۔ انکل آپ کچھ نہیں لاتے طوطے کہاں ہیں؟ طوطے دکھاتا ہوں، طوطے چالا تو طوطے بھی کھانا، طوطے چالا تم طوطے بھی کھانا گیا تم چنگے لگ دو لے کے چلا جائیں۔ پرندے دیکھنے کی شوق میں یہ بچہ منہمک ہو گیا اور اس کے بعد جیسے وحشت و بربریت اس شخص پر سوار ہو گئی۔ نہ کوئی خوف خدا، نہ ہی کوئی خوف دنیا۔ یہ ظلم کی منازل طے کرنا چاہتا تھا۔ موقع غنیمت جان کر یہ معصوم بیچارہ اپنی جان بچاتے ہوئے نیچے کی جانب بھاگا۔ اور اگلے ہی لمحے یہ اس دروازے سے باہر
अपने घर की जानिब दौड़ने लगा। इसी तरह यहां तक पहुंचने के बाद लोगों के साथ बैठे अपने अब्बू को पूरी गुजरी दास्तान सुनाने लगा और इसी दौरान इस बच्चे का चचा भी आ पहुंचा और यहां एक नई सूरत हाल दरपेश आ गई। भाई बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। बच्चों के साथ हाँ, ये ज्यादती करता है बच्चों के साथ। हम नहीं छोड़ेंगे नहीं यार, हमने छोड़ेंगे यार। हमारे कॉल करो, हमारे कॉल किया सर, RA15 पे कॉल हो गया। नाज़रीन, इस वाक़े की बाज़गश्त पूरे तुलंबा के इलाके में फैल चुकी थी। जिस वक्त ये इत्तला तुलंबा पुलिस स्टेशन में पहुंची, इत्तेफाकन हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की पूरी टीम के हमराह यहां शूटिंग में मसरूफ थे कि इस गंभीर इत्तला पर कानून के एहलकारों के साथ और मुतासिरा बच्चे के अहल खाना के हमराह हम उसी जानिब चल दिए। दरवाजा खोलो, फहीम को बुलाओ। नहीं है घर में, किधर है? पता नहीं चला, किधर गया हुआ है? किधर गया हुआ है? पता नहीं है। कितनी देर हो गई है? 24 घंटे से गया, झूठ बोलते हो। सैकड़ों की तादाद में लोग इसी जानिब यकजा होने लगे। इधर है? नहीं है। इधर देखा है? और फिर यही सब कुछ होने लगा। मालूम हुआ कि मौके से मुलजिम फरार हो चुका है। इन हालात वाकयात को जानते हुए अहले इलाका में आखिरकार कुछ हौसला पैदा हुआ। इस वाक़े को सुनकर हर एक गम और गुस्से में था और आखिरकार दिलों में छुपी बातें लोगों के लबों तक आ गईं। यहाँ पे वो आदमी रहता है जो मासूम बच्चों के साथ ज्यादतियां करता है। ऐसे लोगों को महल्ले इलाके में क्यों रहने देते हैं आप लोग? बस अब इसकी निशानदेही हो चुकी है। हम भी अफसरान बाला से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे अनासर को यहाँ से निकाला जाए। माला सईदा जाफरिया का रहायशी आदमी है और ये नशा करता है, हेरोइन पीता है। हमारा बच्चा इधर से दही लेने आता था, 7 साल का है। अच्छा। ये आदमी उस बच्चे को जबरदस्त को करता था और उसको पकड़ता था। तुलंबा पुलिस स्टेशन में हमने इसके खिलाफ दरखास्त भी दी और इसे पकड़ाया भी सही। और फिर कुछ लोग आ गए, मिन्नत समाजत किया, हमने चलो माफ कर दिया। ऐसे महल्ले के आदमियों को माफ करने का आपने नतीजा अंजाम देखा? हाँ, देख लिया, अब नहीं माफ करेंगे। यहाँ पे दहशतगर्द रहता है जो मासूम बच्चों के साथ जुल्म करता है और उनके साथ ज्यादती करता है। किरदार था, इस पर पहले भी लोग काफी शक करते थे, अभी तो ये वादे तौर पर सामने आ चुका है। ऐसे इंसान को बहुत बुरी सजा देनी चाहिए। वो हमें भी कहता था आइयो बच्चों मेरे से चीज ले लो, हम अगर नहीं उससे लेते तो वो हमें डराता भी था। वो कहता था आज आपका पेंटिंग खाओ और हमें पैसे कहते हैं आज तुम्हें चीज ला के देता हूँ, पैसे भी देता हूँ। हमने कहा हमने नहीं जाना। ये मोहम्मद फहीम जो तुम्हारी इस गली में रहता है, उसको जानते हो? जी, उसको सारा इलाका जानता है सर। कैसे? उसको क्रिमिनल से। कैसे? उसके क्राइम बहुत हैं जी। यानी उसके छोटे छोटे बच्चों को इधर से घेर कर ले जाता है मेरी दुकान से, शॉप से। उसने 6 माह में यहाँ से 30 बच्चे ले गया। वो क्या बात कर रहे हो आप यार? ये किसी को कबूतर दिखाकर ले जाता है, किसी को तोते दिखाकर ले जाता है। नहीं तो यहाँ से जो बच्चों को वो ले जाने की कोशिश करता है, ले गया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, कभी तुम भी तो बहन बेटियों वाले हो, तुमने मना नहीं किया कभी? बिल्कुल मैंने मना किया था सर जी, एक 2 बार उसने वो मेरे को छुरे लेकर इधर आ गया। क्यों? यही कि तू हमें क्यों रोकता है इधर से। मैंने उसे बोला इधर नहीं आया करो मेरे होटल पर, तुम बच्चों को तंग करते हो, खराब करते हो। बोलता है तेरे बाप के बच्चे इधर बदतमीजी किया, उधर कुहाड़े लेकर आ गया, छुरे लेकर आ गया था इधर। तुलंबा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वकू पजीर होने वाले इस ताजा तरीन वकूए के बारे में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल अली वसीम सीआईए इंचार्ज से ये मालूमात ले रहे थे कि आखिर मुलजिम या मुलजमान का क्या हुआ। इस केस में मतलूब मुलजिम की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और इस केस में नेटवर्क को मजीद मुतहर्रिक करने और मुलजमान की गिरफ्तारी के बाबत अहकामात दिए जाते रहे। तुलंबा पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाला हर एक शख्स इस कोशिश, काविश और जस्तुजू में था कि किसी भी तरह नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करवा दिया जाए और आखिरकार
किसी शहरी ने अपना फर्ज निभाते हुए मुलजिम की निशानदेही कर दी। कानून के एहलकारों तक पहुंचने वाली इत्तलात के साथ ही ये सब इसी जानिब दौड़ते नजर आए। आखिरकार इसी अंदाज से फहीम नामी नामजद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। वांटेड। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फहीम साहब, वाल्द? मोहम्मद खलील साहब, कौम? अराई सारे। तो उस दिन अली हसन को तुम ऊपर क्यों ले गए थे? गलती हो गई, मैं नहीं लेके गया। बकवास मत करो। नहीं सर, मैं नहीं लेके गया। तुमने उसको ऊपर ले गए परिंदों के मुझसे बहाने, उसने बताया। नशे में था सर जी। मेरी बात गौर से सुन। जी सर जी। तुमने और कितने बच्चे ले गए हो? मैं सर किसी को नहीं ले गया सर। कितने को मारा है? मैंने नहीं मारा किसी को सर। तेरा सारा रिकॉर्ड आ गया है। सर मुझे पता ही नहीं, उस्मान को तो मैंने मारा ही नहीं। क्या कहा? उस्मान? मैंने तो मारा ही नहीं सर। उस्मान का सारे तू है उसका कातिल? नाजरीन, दौरान इंटरोगेशन मालूमात के लेते लेते अचानक ही एक ऐसी बात मंजर आम पर आ गई कि जो सब कुछ हैरान कुन था। यानी चंद माह पेशतर इसी तुलंबा पुलिस स्टेशन की हुदूद में उस्मान नामी जिस बच्चे की लाश कब्रिस्तान से बरामद की गई, जिस मुलजिम की तलाश थी, मालूम यह हुआ कि उस मासूम बच्चे का कातिल भी यही शख्स है। तुमने जो कब्रिस्तान में उस्मान की लाश फेंकी है, पता है उसके घर वालों का क्या हाल है? सर मैं नशे में होता हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तेरा नशे उतारते हैं। अब मेरे सर पे शैतान आ गया सर। बुलाओ शैतान को, तेरी शैतानी निकालू। शैतान सवार हो गया था जी, गलती हो गई। उसके बाद कितने बच्चों को ऐसे मारा है? किसी को नहीं मारा जी मैंने। झूठ मुझे बोलते हो। माफ कर दो जी, मुझे, मैंने किसी को नहीं मारा जी। अब तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है ना, अब देखेंगे कि कितने बच्चों के साथ तूने ज्यादती की कोशिश की है और कितने बच्चों को मारा है। मजीद इत्तलात जल्द अज जल्द ली जाती रही और इसके बाद फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल अली वसीम को टेलीफोन के जरिए आगाह किया जाने लगा। हेलो सलाम सर। सर वो उस्मान वाला कत्ल जो है ट्रेस हो गया सर। अच्छा, तो दौरान इंटरोगेशन जो है उसको भी इस आपकी सारी टीम को भी शाबाश। सर मेहरबानी सर। उस्मान मर्डर केस था। बच्चा जो रोती से आया होता रोटी से आया था, जो यहाँ अपने नाने के घर आया था जी। वो कह रहे हैं कि उसका कत्ल भी मिल गया। नाजरीन, इस एपिसोड के इस मोड़ पर हम आप तमाम दोस्तों से ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि अगर अपने अपने इलाके महलों की निगरानी खुद हम नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को क्या मुरीद इल्जाम ठहराएं। हमें ओबाश किस्म के अफराद के महल्ले में दाखिले पर निगाह रखनी चाहिए और हमें यह मालूमात करना चाहिए कि आखिर यहां किस लिए उसकी आमद है। और ये कभी ना सोचिए कि ये हमारा मसला नहीं, उसका मसला है। याद रखिए, आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमाया है कि एक दूसरे की मिजाज पुरसी किया करो ताकि मोहब्बतें परवान चढ़ें। और इस पूरे एपिसोड को दिखाने का मकसद ये है कि माँ बाप, बहन भाइयों, अजीज अकारिब, बुजुर्गों को जरूर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि मासूम छोटे बच्चे घर से तन्हा बाहर न जाएं। और अवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जराइम पेशा नासिर पर जरूर निगाह रखें और कानून की पासदारी को मजबूत बनाएं। जिला खानेवाल के पुलिस स्टेशन तुलंबा में एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र 5 साल थी, उसका बड़ा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बसीयत डीपी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुझे जब इसकी इतला मिली, तो ये लगभग शाम का टाइम था और बच्चे को बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया गया और लग ऐसे रहा था जैसे बच्चे के साथ ज्यादती हुई है पहले और उसके बाद उस मासूम का गला घोंट के उसको मार दिया गया। फिर उस पर तशद्दुद भी हुआ था और ये बड़ा वाकया ऐसा था जो हमारे लिए इलाके में बड़ा इसका खौफ व खराश था और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था खानेवाल पुलिस के लिए। इस पे हमने बड़ी मेहनत की। यहाँ पे ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मुलजम कितना भी चालाक होशियार क्यों ना हो, और उसके अलावा जो कत्ल है वो कभी छुपता नहीं है, और वो भी मासूम बच्चे का कत्ल।